students, now open page number 39 in your English textbook. Students, we finish our lesson number 3. So, today I will teach you lesson number 4. Priya's Dream. Students, now pay attention in your textbook. First, I will read this lesson and you have to repeat after me. Lesson number 4. Priya's Dream. Priya, wake up at once. It's 7 o'clock. You will be late for school again. Calls out mother. As usual, Priya is still sleeping. Every day, it is the same story. Priya gets up late and then she is late for everything. Her parents, teachers and friends love her, but they scold her for being late. Priya was very excited. Her birthday was near. Grandmother bought some beautiful red silk material for her. Priya's mother told a tailor to make a smart frock. Priya sent invitations to all her friends. Father told the baker to make a Mickey Mouse birthday cake for her. At last, the big day came. Priya was late for school again. Her teacher scolded her. After school, Priya and her mother went to the tailor's shop. He said, "I am sorry, your dress is not ready. I got up late this morning." Priya was very upset. At the bakery, the baker said, "I am sorry, the cake is not ready. I woke up late today." Priya felt very bad. Priya and her mother reached home. There were no streamers, no balloons, no flowers in the party room. There was no colorful tablecloth on the table. Grandmother said, "I am sorry, Priya. The servant did not come in time, so I could not decorate the party room." Poor Priya. What could she do? Now turn your page. It was 5 o'clock. It was time for the party. Priya waited eagerly for her friends.
5 o'clock, 6 o'clock. No one came. Priya started weeping. Finally, at 7 o'clock, her friends arrived. They said to Priya, "We are sorry, we are late." It was time to cut the cake, but Priya's father was not there. Mother phoned father. Then she said, "Priya, father will be late. Let's cut the cake now." Priya's eyes filled with tears again. She understood that her birthday was spoiled because everything was late. "Priya, get up, dear. It's your birthday today." "Happy birthday, dear," said mother, shaking her gently. Priya opened her eyes. She sat up quickly. She asked her mother, "Am I late again?" Mother replied, "No, my dear, you are not. Get ready now." Priya reached her school in time. Her red silk dress was ready in the evening. The party room was decorated beautifully. Father came home early with the Mickey Mouse birthday cake. All her friends came in time. Priya happily blew out the candles on her cake. Everyone clapped their hands and sang, "Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Priya. Happy birthday to you." Then they all ate the cake, the sandwiches, the pastries and the patties, and drank lemonade. After eating and drinking, they played games. What fun they had! Priya really enjoyed herself. That night, Priya told her mother about her dream. She said, "Mother, from today onwards, I will always be in time." Mother hugged her and said, "Priya, you are a wonderful child." Okay students, now I will explain you this lesson. Lesson number 4, Priya's dream, यानी प्रिया का सपना. ड्रीम यानी सपना. Now pay attention here. Priya, wake up at once. प्रिया, एक बार में उठ जाओ. It's 7 o'clock. 7 बज गए हैं. You will be late for school again, calls out mother. तुम फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, उसकी मम्मी ने कहा. As usual, Priya is still sleeping. As usual means in the same way as what happens. यानी हमेशा की तरह. As usual means हमेशा की तरह. As usual, Priya is still sleeping. हमेशा की तरह प्रिया सो रही थी. Every day it is the same story. Every day यानी हर रोज
एक ही सेम स्टोरी, यानी हमेशा एक ही स्टोरी होती है। प्रिया गेट्स अप लेट एंड देन शी इज लेट फॉर एवरीथिंग। प्रिया लेट उठती है और हर काम के लिए वो लेट हो जाती है, हर लेट कर देती है। हर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स लव हर बट दे स्कोल्ड हर फॉर बीइंग लेट। उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, टीचर्स और उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त सभी उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसके लेट होने की वजह से सब उसे डांटते थे। स्कोल्ड यानी डांटना, सब उसे डांटते थे। प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड। प्रिया बहुत ही उत्साहित थी। हर बर्थडे वॉज नियर। उसका बर्थडे यानी उसका जन्मदिन बहुत ही नजदीक था। ग्रैंडमदर बॉट सम ब्यूटीफुल रेड सिल्क मटेरियल फॉर हर। ग्रैंडमदर यानी उसकी दादी माँ उसके लिए ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रेड कलर का सिल्क मटेरियल लाए थे। प्रिया's mother told a tailor to make a smart frock. प्रिया की माँ ने सिल्क का वो कपड़ा टेलर को यानी टेलर को दिया था और कहा इसका फ्रॉक बना देना। प्रिया सेंट इनविटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड्स। प्रिया ने अपने सभी फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को इनविटेशन भेज दिया था। फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिकी माउस बर्थडे केक फॉर हर। फादर, उसके पापा ने भी, प्रिया के पापा ने भी बेकर को बोला था कि एक मिकी माउस वाला बर्थडे केक बना के रखो। एट लास्ट द बिग डे केम। एट लास्ट यानी आखिरकार वो दिन आ गया। प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन। प्रिया फिर से स्कूल के लिए लेट हो गई। उसकी हर टीचर स्कोल्डेड हर। उसकी टीचर ने उसको डांटा। आफ्टर स्कूल प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर्स शॉप। आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद प्रिया और उसकी माँ, उसकी मदर टेलर के पास गए। He said, I am sorry, your dress is not ready. टेलर ने कहा कि I am sorry, मुझे माफ कर दो, आपका ड्रेस तैयार नहीं है। Your dress is not ready. I got up late this morning. मैं आज देरी से उठा था। प्रिया वॉज वेरी अपसेट। प्रिया बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। एट द बेकरी द बेकर सेड आई एम सॉरी द केक इज नॉट रेडी। बेकरी पे भी बेकर ने कहा मुझे माफ कर दो, केक रेडी नहीं है। आई वॉक अप लेट टूडे। आज मैं लेट उठा था, देर से उठा था। प्रिया फेल्ट वेरी बैड। प्रिया को बहुत बुरा लगा। प्रिया एंड हर मदर रीच होम। प्रिया और उसकी माँ घर पहुंचे। देयर वेर नो स्ट्रीमर्स, नो बलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम। उन्होंने घर पहुंच के देखा तो कि पार्टी की कोई तैयारियां नहीं हुई थी। नो बलून्स, नो फ्लावर्स, कुछ भी पार्टी रूम में नहीं था।
There was no colorful tablecloth on the table. टेबल पे भी कोई कलरफुल टेबल क्लॉथ नहीं था. Grandmother said, I am sorry, Priya. The servant did not come in time, so I could not decorate the party room. Grandmother said, दादी माँ ने कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया. The servant did not come in time, so I could not decorate the party room. जो सर्वेंट यानी कि जो नौकर थे वो टाइम पे नहीं आए थे, इसीलिए वो पार्टी के रूम को डेकोरेट नहीं कर पाई थी. पुअर प्रिया, पुअर यानी बिचारी प्रिया. What could she do? वो क्या करे? Now turn your page. It was 5 o'clock. 5 बज गए थे. It was time for the party. अभी पार्टी का टाइम था. Priya waited eagerly for her friends. Eagerly means in a very interested and excited manner. Eagerly यानी बेसब्री से, किसी का इंतजार करना. Eagerly, in a very interested and excited manner. Priya waited eagerly for her friends. प्रिया बेसब्री से अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी, अपने दोस्तों का वेट कर रही थी. 5 o'clock, 6 o'clock, 5 बज गए, 6 बज गए. No one came, पर कोई नहीं आया. Priya started weeping. प्रिया रोने लगी. Finally at 7 o'clock her friends arrived. आखिरकार 7 बजे उसके फ्रेंड्स आ गए. They said to Priya, we are sorry we are late. उन्होंने प्रिया से कहा कि हमें माफ कर दो, हमें देरी हो गई. It was time to cut the cake, but Priya's father was not there. अब केक काटने की बारी थी, परंतु जो प्रिया के फादर थे, प्रिया के पापा थे, वो नहीं आए थे. मदर फोन फादर, उसकी मदर ने उसके फादर को, उसके पापा को फोन किया. Then she said, Priya, father will be late. तब उसकी मम्मी ने कहा, प्रिया पापा लेट हो जाएंगे. Let's cut the cake now. चलो हम केक काटते हैं अभी. Priya's eyes filled with tears again. प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई. टीयर्स यानी आंसू, आंसुओं से भर गई. She understood that her birthday was spoiled because everything was late. She understood that her birthday was spoiled. Spoiled means change something happy into something unpleasant. Spoiled means बिगड़ा हुआ. Change something happy into something unpleasant, यानी बिगड़ा हुआ. उसे she understood, उसे एहसास हो गया था कि उसका बर्थडे स्पॉइल यानी बिगड़ गया. क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वॉज लेट, क्योंकि सब लेट हो गया था, देरी से हो गया था, इसीलिए. प्रिया गेट अप, प्रिया गेट अप डियर, इट्स योर बर्थडे टुडे. प्रिया उठ जाओ, इट्स योर बर्थडे टुडे, आज तुम्हारा बर्थडे है, जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे डियर,
सेड मदर शेकिंग हर जेंटली। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे डियर। प्रिया ओपन हर आईज। प्रिया ने अपनी आंखें खोली। शी सेट अप क्विकली। वो जल्दी से बैठ गई। शी आस्क्ड हर मदर, एम आई लेट अगेन? उसने उसकी माँ को पूछा, क्या मैं फिर से लेट हो गई? मदर रिप्लाइड, नो माय डियर, यू आर नॉट। माँ ने कहा, नहीं तुम लेट नहीं हुई हो। गेट रेडी नाउ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया रीच हर स्कूल इन टाइम। प्रिया टाइम से स्कूल पहुंच गई। हर रेड सिल्क ड्रेस वॉज रेडी इन द इवनिंग। उसका रेड ड्रेस था, वो भी शाम तक, इवनिंग यानी शाम तक तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। द पार्टी रूम वॉज डेकोरेट ब्यूटीफुली। पार्टी का रूम था, वो भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट हो गया था। फादर केम होम अर्ली विद द मिकी माउस बर्थडे केक। उसके पापा भी जल्दी घर पे आ गए थे मिकी माउस वाली केक लेके। ऑल हर फ्रेंड्स केम इन टाइम। उसके फ्रेंड्स भी टाइम पे आ गए थे। प्रिया हैप्पीली ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर केक। प्रिया ने खुशी खुशी केक के ऊपर की कैंडल्स को बुझाया। एवरीवन क्लैप देयर हैंड्स एंड सेइंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी ने क्लैप करके उसके लिए गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Then they all ate the cake, the sandwiches, the pastries and the patties and drank lemonade. उन सब ने केक खाया, सैंडविचेस भी खाई, पेस्ट्रीज और पैटीज भी खाई, एंड ड्रैंक लेमनेड, और सबने जो नींबू पानी था वो भी पिया। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दे प्लेड गेम्स। आफ्टर ईटिंग यानी खाने के बाद, और ड्रिंकिंग यानी सब कुछ पीने के बाद उन्होंने गेम्स खेली। What fun they had! उन्होंने बहुत मजे किए। प्रिया रियली एंजॉय हरसेल्फ। प्रिया ने भी बहुत एंजॉय किया। That night प्रिया टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम। उस रात प्रिया ने अपनी माँ को अपने ड्रीम यानी उसके अपने सपने के बारे में बताया। शी सेड, मदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज बी इन टाइम। उसने अपनी माँ को कहा, टुडे ऑनवर्ड्स यानी आज से मैं हमेशा समय पर ही रहूंगी। मदर हग्ड हर एंड सेड, प्रिया यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड। मदर ने उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, प्रिया तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। स्टूडेंट्स, तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखना चाहिए कि हमें कोई काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
सब काम टाइम पे ही करना चाहिए. Now we will see the word meanings. As usual means in the same way as what happens, यानी हमेशा की तरह. In time means not late, यानी समय के भीतर है. Now turn your page. Eagerly. Eagerly means in a very interested and excited manner, यानी बेसब्री से. Eagerly यानी बेसब्री से. Spoiled. Spoiled means change something happy into a something unpleasant. Spoiled यानी बिगड़ा हुआ. Okay students, now your homework is read this lesson number 4 at your home. Thank you. Have a nice day.